इसमें बहुत कुछ होने वाला है। सपनों से लेकर हकीकत की जो यात्रा है वो यहीं होने वाली है और इसलिए इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे माननीय अतिथि यहाँ पर आए हैं। प्लीज आप आगे आ जाएं, जो पीछे खड़े हों वो अपनी जगह को ले लें और कृपया आगे की सीट पर बैठ जाएं। और अब मैं प्रार्थना करूंगी, विनम्र निवेदन, डायरेक्टर एनआई Honorable Chief Minister of Maharashtra and Chief Guest of today's function, Shri Devendra Fadnavis ji, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Minister of State, Independent Charge of the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Earth Sciences, the Department of Atomic Energy and the Department of Space, Government of India, Shri Mangal Prabhat Lodha ji, Honorable Minister of Skills, Employment, Entrepreneurship and Investment, Government of Maharashtra, our fellow directors, esteemed guests, honored dignitaries, visionary entrepreneurs, the media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to warmly welcome you to this important event of a Startup Conclave 2025 at Mumbai. We are extremely privileged to have among us distinguished guests, Shri Devendra Fadnavis ji, Dr. Jitendra Singh ji and Shri Mangal Prabhat Lodha ji, and we thank them from core of our hearts for gracing this event for their gracious present. It is a pleasure to see many passionate and engaged individuals here today that symbolizes the spirit of innovation, resilience, and collaboration that define our vibrant entrepreneurial system. Today, we stand at crossroads of opportunity and challenges where the confluence of technology, creativity, and ambition paves the way for transformative change. We are excited to embark on this journey together here in an apt place, Mumbai, the commercial city of India. India is now world's third largest startup ecosystem with 1.5 lakh startups. On January 16, 2025, India marked 9 years of Startup India, a transformative journey that began in 2016. Startups are considered as the cornerstone of the key driver for India's progress toward vision of Viksit Bharat by 2047, aiming for India to become a developed nation through inclusive, sustainable, and innovative-led growth. The rising entrepreneurial trend and individual seeking new skills to start ventures is also seen as contributing to employment generation, supporting the vision of New India, new age startup, forging government collaborations, and securing funding are noted as setting a positive tone for future progress toward Viksit Bharat. Technology plays a pivotal role in shaping the future of startups. With advancement of artificial intelligence, machine learning, and blockchain technology, entrepreneurs have unprecedented tools at their disposal to disrupt traditional business models. CSIR has been instrumental in paving the way for the wider entrepreneurial ecosystem in India, further enhancing its support for startups and industry. CSIR unveiled India's first of its kind mega state-of-the-art innovation complex in Mumbai in January this year, dedicated to startups and industry stakeholders designed for innovative system, MSMEs, industry, and CSIR. With great support of our Minister, Dr. Jitendra Singh ji, next one decade is going to be very, very important for ocean sciences, as blue economy is going to contribute significantly up to double digit to the GDP of India. India has large potential to contribute to both living and non-living resources, the development of technology, dealing with fishery, bioprospecting, marine robotics, mineral and energy resources are going to be very, very important. Startups in some of these areas are going to be important in coming future. This conclave is a unique opportunity to
to broaden our perspective, and we encourage you to make the most of it. I wish you insightful discussion and valuable networking with a goal to align stakeholders with ecosystem, government, startups, investors, and academia on a common purpose to make India a global hub for innovation, ensuring collaborative action to achieve shared outcomes. Once again, I welcome you all. Thank you very much. Jai Hind. बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि कहा कि एक नए भारत की, एक विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें हम सब एक साथ चल पड़े हैं, और इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत CSIR के 3 इंस्टीट्यूट्स NIO, नीरी और NCL इस बार साथ आए हैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव के आयोजन में। और मैं अब प्रार्थना करूंगी डॉक्टर आशीष लेली जो डायरेक्टर हैं NCL के, कि वो आए और 2 शब्द हम सबके साथ साझा करें। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, Honorable Minister of State with Independent Charge for Science and Technology and Vice President CSIR Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Shri Mangal Prabhat Lodha ji, Minister of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, my colleagues Dr. Sunil Kumar ji and Dr. Venkat Mohan ji, Directors of CSIR NIO and CSIR NEERI, distinguished guests in the audience, my CSR colleagues and students, and all the entrepreneurs representing the startups participating in this conclave today. Namaskar and a very good afternoon. It's indeed an honor and privilege for CSIR, especially CSIR NCL, to be one of the organizers of this conclave. We are very grateful to you, sir, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Honorable Minister of State for Science and Technology, and Honorable Minister for Skill Development and Entrepreneurship, for taking time out of your busy schedules and gracing this wonderful event. India is the 3rd largest startup nation with more than 1 lakh startups, more than 100 unicorns in this country. There is clearly a large excitement around startups, and there are many events like this which are organized across the country continuously. But what is unique about the conclaves organized by CSIR such as this is that all the startups that you see here are deep tech startups. They are science focused, they have high level of engineering innovation, they solve real world problems, complex problems. For example, we have startups in medtech, in climate change, clean energy, circularity, biomanufacturing, and so on. CSIR NCL started Venture Center, a technology business incubator, nearly 17 years ago. We have, at any point of time, 80+ resident startups. We have mentored more than 750 entrepreneurs, and more than 100 products created by these startups are today commercially available in the market. I'm very proud to say that 55% of the startups has at least one woman founder that have come out of the Venture Center. And these startups have mobilized more than 700 crore investment so far. The Venture Center is nested in an ecosystem of leading R&D and academic institutions in the city of Pune. As you know, Pune is called the Oxford of the East. It provides invaluable mentoring, incubation, networking, funding, scientific assistance to all the startups that are created there. And many of those startups are today present in this conclave. Some of them, I'm very happy to say, are also spin-outs that have come out of CSIR NCL, created by scientists who have become entrepreneurs. माझी संस्था म्हणजे पुण्याची राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा यांनी नुकतेच देशसेवेचे अमृत महोत्सव साजरा केला आहे. We have just completed 75 years of our glorious service to the nation. CSIR NCL's R&D effort epitomizes excellence and relevance. सरस्वती आणि लक्ष्मी याचा सुंदर मिलाप आमच्या प्रयोगातून दिसून येतो. म्हणजे भांडवलातून ज्ञान आणि ज्ञानातून संपत्ती
त्याचा निर्माण आणि त्याचा देशासाठी सकारात्मक प्रभाव हा आमच्या R&D मधनं कायम दिसून येतो. Today, NCL is engaged in many important research themes. We are working in clean energy, CCU, circularity, process intensification, biomanufacturing, agri-tech, and many more. I'm very proud to say that NCL has made many wonderful contributions in the past 75 years. And I'm particularly proud today to say that one of the very important polymeric resin called the PMR polyamide resin, which is a very important component of the BrahMos missile, was developed at NCL and commercialized at NCL. And very recently we have seen what BrahMos has done. Similarly, NCL developed zeolite for oxygen concentration, which is today used in the oxygen generators of the MiG-29 aircrafts. It's also used for biogas purification, which is a technology fast growing in this country. We are also the first to fully indigenize hydrogen fuel cell powered bus and also the hydrogen fuel cell powered catamaran. And I'm very proud to say and very happy to say that the fuel cell bus was inaugurated by the Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh Ji, and the catamaran was launched by the Honorable Prime Minister last year. There are hundreds of such innovations that NCL has created. Really and truly, innovation is the DNA of CSIR. Our goal in CSIR is always to traverse the journey from lab to market successfully and bring our technologies to commercialization. And startups is one of the routes to do this. So today's conclave is a reflection of CSIR's strong support to the Honorable Prime Minister's startup and stand-up mantra. I hope all of you will get excited and enthused with the proceedings of the conclave. I once again thank the honorable dignitaries on the dais for gracing this event. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. And as you informed rightly, that there are all kinds of sectors that startups are now working on, and that includes right from agri-tech to fintech to crafts to food. I mean, variety of possibilities that are there, and they're all working towards it. So I think our best wishes are with you. And now I invite Dr. Venkat Mohan, Director NEERI, to also share a few words with you here. Honorable Chief Minister Ji, Sri Devendra Fadnavis, Honorable Minister of Science and Technology, Vice President CSIR, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Mangal Prabhat Lodi Ji, fellow directors from NIO, NCL and IIM, guests, invitees, innovators, press media, and my dear colleagues. Namaskar and good afternoon to all. On behalf of CSIR NEERI, I welcome all to this important conclave, which showcases innovation as well as science and sustainability in the context of entrepreneurship. I would like to thank Chief Minister Ji and Mantri Ji for taking time to come and grace this important occasion to show to this startup enclave. This conclave is very important in the sense of environment, particularly about 30% of the startup today displayed in this event relates to environment and sustainability. So now we know that environment is one of the major issues where we face significantly with respect to climate change issues, and whatever we do in this direction will have a lot of significance. And these startups which contributes to environment and sustainability are very important. They are not only business entities, but also support the requirement of sustainability and the future. As NEERI, it's a national referral laboratory started way before 1958, has supported environment in significant way with the changing times and changing requirements. So it addressed initially water treatment and then subsequently moved to sanitation and other areas, and has been pioneering leader in different domains with interdisciplinary expertise. So it also works with regulatory agencies, policy makers, with 67 years of contribution to nation and society.
it has shown a significant impact on nation building. And apart from NEERI, looking into the environmental aspects, it's also contributed significantly to development of technology as and when required with respect to environment and sustainability. Few of the startups are displayed here in this conclave, near to 50 plus MSMEs supported by NEERI technology. And the areas mostly relates to water treatment, wastewater treatment, green materials and environmental biotechnology are showcased here. So apart from that, NEERI try to give its technologies in an open domain in order to reach society more easily. Apart from NEERI's technologies, there are near to 30% of the SMEs, particularly 20 plus are associated with environment and sustainability, wherein they showcase different kind of strategies in order to address different domains of environmental issues. NEERI also try to support SMEs in a significant way, startups try to do in a different models. One of the things is technology transfer apart from skill development and capacity building. We also try to look into technology evaluation at a scale and ideation and mentorship. This conclave is a platform, I would like to say, to interact, make collaborate, and get leads and ideas for young entrepreneurs, look for opportunity. So request all the invitees and guests to look into the all startup things in order to encourage the startups and also get an ideas to start something in eco-innovation. So I again extend my heartful thanks to Chief Minister Ji, Mantri Ji for taking time to come and visit this conclave and inaugurate. And also I want to convey my thanks to participants of this conclave, startup, academics, industries, as well as media, for making this gathering immensible and eventful. Thank you very much for your kind attention. Thank you so much, sir. And to give you very briefly a little context, in the morning we had Pitch Darbar, where some of the startups showcased and pitched their ideas, and the investors and industry members listened to them and, of course, applauded them, but also showing interest in them. So that's the whole idea of the Startup Conclave 2025 happening here in Mumbai, which Honorable CM calls the startup capital of India. So lots happening here in Mumbai for all of you. And now I request our Minister from Government of Maharashtra, which is Mangal Prabhat Lodha ji, who is Minister of Skill Employment, Entrepreneurship and Innovation, somebody who's a well-known name in the industry and also made great contribution, great strides in the business community. I invite sir for your words here. थोड़ा सा बोलिए, 2 लाइन. महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून, माझे नेते महाराष्ट्राचे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, देशाचे मंत्री, जास्त वेळा त्याने 2 पेक्षा जास्त वेळा त्याने पीएमओ सांभाळलेला आहे असे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री आशीष लेले जी, सुशील कुमार सिंह जी, एस वेंकटरमण जी, इथे जमलेले सर्व स्टार्टअप बंधु भगिनींनो, मैं स्टार्टअप का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे पास में दिया और उसके बाद में मैं जितना देख रहा हूं, पिछले 6 महीने के अंदर जब से ये नई सरकार आई है, तब से महाराष्ट्र के अंदर स्टार्टअप के लिए हर समय कुछ नया करने का उनका निर्देश रहता है। और अभी पिछले महीने ही जब उनसे चर्चा हुई थी, तब चर्चा में हमने एक नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाने का निर्णय किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ से उस स्टार्टअप पॉलिसी को पब्लिक के सामने रखा कि आप इसमें सजेशन दीजिए। मैं अभी केवल आपसे इतना ही बता सकता हूं कि स्टार्टअप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, पर आने वाले समय में स्टार्टअप क्लास मूवमेंट से हटकर मास मूवमेंट बने, शहरों से निकलकर गांवों तक जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आपके शब्दों से हम सबको प्रेरणा मिलती है, and I'm sure the startups who are going to learn a lot and also walk on their favorite journey for the desired outcomes are really benefiting a lot from all these addresses. And the next dignitary, of course, ladies and gentlemen, I'm going to invite a brief introduction about him.
our Union Minister, Independent Charge, Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Minister of State, PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Department of Atomic Energy and Space, also the Vice President of CSIR, Union Minister Dr. Jitendra Singh Ji is somebody who we would call a 24/7 minister, always on the go, and is very much here, who's arrived from Delhi from his busy schedule to interact and listen to you all. Somebody who's a diabetologist, but also an author, who loves to read and write, also to keep learning from all of you. I now invite, sir, a very dynamic leader. Please, ladies and gentlemen, round of applause for Dr. Jitendra Singh Ji. महाराष्ट्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके लोकप्रिय नेता और हम सबके वरिष्ठ साथी, ऐसे हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ बैठने से ही ऊर्जा का संचार हो जाता है और इसलिए हमारा ये आग्रह था कि हम ये इस प्रकार का आयोजन ऐसे समय में करें जब उनकी उपलब्धता हमें सुनिश्चित हो। और मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि आज भी बड़े व्यस्त थे वो, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमारी इज्जत अफजाई भी की और हमसे ज्यादा इन बच्चों का प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये बच्चे आपको एक यूथ आइकॉन की तरह भी देखते हैं, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, और इसलिए आपकी उपस्थिति निश्चय ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देगी। हमारे साथ स्किल और साइंस के मंत्री लोधा जी, जिनका भी आपने संबोधन सुना, हमारे 3 बहुत ही प्रतिभाशाली डायरेक्टर, नेशनल ओशन इंस्टीट्यूट के सुनील कुमार जी, बहुत ही हमारे सीनियर पुणे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के डॉक्टर लेले जी, डॉक्टर वेंकट मोहन, ये हमारे नीरी नागपुर से हैं, और इन सब का यहां होने का ये भी अर्थ है कि ये 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर के एक समन्वय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मेरा अभी ये सुझाव ये था इनसे आने से पहले कि अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो ये CSIR के 3 इंस्टीट्यूट्स के अतिरिक्त जो दूसरे विभागों के साथ संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी साथ में जोड़ करके एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और इससे जिसे अक्सर कहा जाता है होल ऑफ साइंस, उसका संदेश जाएगा। अब होल ऑफ साइंस के साथ दूसरी बात ना मालूम आपने महसूस की कि नहीं, यहां पर हमें सहयोग महाराष्ट्र सरकार का है और केंद्र से हमारे प्रतिनिधि अधिकारी आए हैं, तो होल ऑफ साइंस के साथ होल ऑफ गवर्नमेंट भी जुड़ गया। और अगर आप पीछे निगाह करें तो इन युवाओं में स्टार्टअप्स भी हैं, स्टूडेंट छात्र भी हैं, शोधकर्ता रिसर्चर्स भी हैं, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी हैं, MSME के प्रतिनिधि भी हैं। तो यानी होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन हो गया। अब चौथा आग्रह जो मैं हर जगह आजकल जाके करता हूं कि इस तरह के कॉन्क्लेव में एक अलग स्लॉट हम रखा करें जो केवल कॉलेज के बच्चों और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए हो, और कोशिश ये रहे कि उसमें उनके साथ माता पिता भी रहें। हमने बायोटेक का एक कॉन्क्लेव किया था दिल्ली में, तो उसमें उस तरह का एक योजना बनाई थी, और उसके पीछे कारण ये कि अक्सर ये महसूस किया जाता है, कहने में थोड़ी शर्म आती है कि जाने अनजाने में नौजवानों की गुमराही का काम माता पिता के ही हाथों से हो जाता है। तो अगर माता पिता और युवाओं का एक अलग से स्लॉट हो जाए तो फिर मान लीजिए कि होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। और जिसे लोधा जी कह रहे थे कि उसको मास मूवमेंट बनाना है, उसका भी एक बहुत ही अच्छा एक सरल रास्ता निकलाएगा। दूसरा सवाल ये कि हमने ये जगह जगह हर क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित करने का एक सिलसिला शुरू किया है।
और उसके पीछे भाव क्या है, अर्थ क्या है। पहली बात तो ये कि अब समय आया है कि हम अपने नौजवानों को समझा सकें कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में बैठ गया है। आप अगर किसी को पूछते तो क्या करता है, तो उसको लगता है कि मैंने बताना है कि मैं कौन से महकमे में, कौन से विभाग में हूं। तो हम तो गांव से आते हैं, तो वहां तो कहते थे जी विवाह ही नहीं होगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो एक तो वो दिमाग से मानसिकता निकालनी है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी के बाहर उसके अतिरिक्त भी इतने अधिक विकल्प हैं जिनमें आमदनी भी ज्यादा है, आपको आजादी भी ज्यादा है, अपना विकास करने का अवसर भी है और बहुत ज्यादा अपनी क्षमता प्रतिभा दिखाने का अवसर भी है। दूसरा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 2015 या 16 की बात है, इस देश में बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं था कि स्टार्टअप है क्या। मुझे खुद बड़े सारे फोन आए शाम को, साहब ये स्टार्टअप करना कि स्टैंड अप करना, इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया, डॉक्टर लेले ने बताया कि मात्र 350 से बढ़कर के आज हम 2.25 लाख पहुंच गए, इतने सारे यूनिकॉर्न हो गए। यानी उस दिन से, क्योंकि मोदी जी स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, लोगों में एक जागरूकता आई कि हम इसे समझें और अब हमारा ये काम है कि हम इसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तीसरा, इस तरह का जो प्रदर्शनी होती है उसमें नौजवानों को अपनी प्रतिभा समझने का अवसर मिलता है। कई बार आपको खुद अपने एप्टीट्यूड का एहसास नहीं होता। अब जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, बाद में समझ आता है नहीं एक्टिंग तो हमारे बस का बात नहीं है, तो चलो कहानीकार बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। तो व्हाट इज योर एक्चुअल इनहेरेंट एप्टीट्यूड, दैट यू विल रियलाइज व्हाइल गोइंग अराउंड दी स्टॉल्स। हो सकता है किसी काम में आप लगे हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रतिभा इसमें, तो ये, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि आप इसका भरपूर वैज्ञानिक ढंग से लाभ लें। और चौथा इसका मकसद ये है कि हमने स्टार्टअप का जब से यहां पर कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ देश में, तो बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे मिथ आ गए। पहला तो ये मिथ है कि आपको आईआईटी बॉम्बे से पढ़ कर आइए तभी स्टार्टअप बनेंगे, फिर होगा जी आप पीएचडी करिए, फिर होता है कि आप साइंसदान हुइए। आपको इन स्टॉल्स में घूम करके समझ आएगा, और खासकर अगर आप एग्री स्टार्टअप्स में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देवेंद्र जी जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिथ टू बी एक्सप्लोडेड। आपके यहां पैशन हो, जुनून हो, यू शुड बी अ गुड लर्नर, टेक्नोलॉजी अपनाने का एप्टीट्यूड हो, सरकार की ओर से पूरा सहयोग, आर्थिक भी और दूसरा भी। हमारे यहां डॉक्टर जमीर बैठे हैं जिनके यहां से पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, लेवेंडर, जिसका मोदी जी ने मन की बात में 10 मिनट जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी दिखाई गई। उस लेवेंडर के माध्यम से लगभग 3000 स्टार्टअप इस समय लगे हैं बच्चे, जिनमें से मुझे लगता है 20-30% ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई। और इसी बम्बई शहर में उनकी एक एक शीशी परफ्यूम की 15-15 हजार की बिक रही है। और उनको देख करके 2 हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए बंगलौर के लड़के नौकरियां छोड़ करके आ गए। अब चूंकि मैं खुद इससे जुड़ा रहता हूं, खुद अपने सीखने के लिए जिज्ञासा से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों आए, तो बोले साहब वहां 12-14 घंटे कंपनी की नौकरी करनी और फिर भी पैसे कम, और यहाँ ये बिना पढ़ाई किए इतना कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना यहाँ आए, हमारे पास तो बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन भी है। तो इन सब लक्ष्यों को हाथ मन में रख करके, उद्देश्यों को मन में रख करके, इस भाव से इस आयोजन का यहाँ पर एतमाद किया गया। ये ना समझिएगा कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम है कि 2 मंत्री बैठ गए, मुख्यमंत्री बैठ गए, अधिकारी लोग आ गए, ताली बज गई, दीप प्रज्वलित हो गया। इसको आप उसी भाव से लीजिए आने वाले समय के लिए। और आज 10 वर्षों में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 हो गए। हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 81 था, आज 39 हो गया। और ये जो स्टार्टअप 2.25 लाख बताए जा रहे हैं, कई बार बड़े शहरों को देख करके ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो जाती है कि 49% ऑफ आवर स्टार्टअप्स टुडे, ये मैं परसों ही स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, कम फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, छोटे शहर, सूरत, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, यहां से हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उस तरह से देखा जाए प्रोपोर्शनली, तो बड़े शहर में तो 100% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 100 बड़े शहरों में अभी शायद उस तरह का हम इनरोल नहीं कर पाए। लेकिन ये स्टार्टअप मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है
और हमारे पेटेंट फाइलिंग इस समय संख्या है 64,480। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑलमोस्ट 56% ऑफ द पेटेंट्स, ये जो बच्चे हैं, दे आर रेजिडेंट इंडियंस, यानी हिंदुस्तान में जन्मे, यहां पले, यहां पर शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं पर उन्होंने अपना इनोवेशन किया और यहीं से पेटेंट लिया। नहीं तो पहले ये कहा जाता है साहब हरगोविंद खुराना बाहर जाएगा तो कुछ बनेगा, यहां कुछ नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर किस्म की व्यवस्था भी है, सोर्स भी है, यहां पर हर तरह की सहूलत भी है। केवल या तो हम उसको अपनाने में थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। और इसलिए और इस सरकार की ओर से हमारा जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारी स्कीमें, मैं चाहूंगा कि आप जरा वेबसाइट पे जाइए। ये भी मेरा बड़ा आग्रह है, बड़ा इमोशनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स समटाइम्स डिसअपॉइंट मी। हमारे पास इतनी बढ़िया स्कीम है, हमने पिछले 5 साल में निधि स्कीम है हमारी, नौजवानों को हर तरह की मदद देते हैं। नेशनल इनिशिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, आपको आर्थिक सहायता, आपको मेंटरशिप, आपको टेक्नोलॉजी सहायता। हमारी डेडिकेटेड टाइड स्कीम है इसी मंत्रालय के दूसरे विभाग की, विच इज डेडिकेटेड टू डिसेबल्ड, टू एल्डरली। वो जाइए उसमें, क्योंकि ये भी एक गलत मिथ आ गया है कि स्टार्टअप होने के लिए नौजवान होना चाहिए। यू आर नॉट स्टार्टिंग अप योर एज, यू आर स्टार्टिंग अप ए प्रोजेक्ट। और इसीलिए मैंने कल ही अपने अधिकारियों को एक सलाह दी कि अगला हम कार्यक्रम करेंगे +60 स्टार्टअप्स के लिए, दोज हु आर अबाउ द एज ऑफ 60। और मेरे पास, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं। हमारा जो सबसे कामयाब मिलेट का स्टार्टअप है वो हमारे मैसूर की इंस्टीट्यूट से रिटायर शुदा एक साइंटिस्ट है, ही इज नाउ ऑलमोस्ट 65। तो वो भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, बहुत उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है। और इसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इनोवेशन इंक्यूबेटर्स जगह जगह लगा दिए गए हैं, सिर्फ आपने उसका फायदा लेना है। और कई बार हमारे यंगस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं रहती, इस कारण ये हो जाता है। और आप चूंकि एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं कि आपके लिए ये अगले कुछ साल न केवल अपनी खुशहाली का एक साधन जरिया बनेंगे, बल्कि जो मोदी जी विकसित भारत कहते रहते हैं उसकी खुशहाली का भी आप माध्यम बनेंगे। और आप ये याद रखिए कि आपको मोदी जी ने न केवल विकसित भारत का सपना दिखाया है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण करने की भी जिम्मेवारी आप पर ही है। ये बाकी पीढ़ी तो जाने वाली है, आज से 22 वर्ष बाद आप ही ने होना है, अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता की चरम सीमा पर। तो ये सिर्फ आपको सपना ही नहीं, आपको जिम्मेवारी समझ के, और यही माध्यम है। बिकॉज द एज इज ऑन योर साइड एंड 2047 भारत का जो उत्सव है वो भी आप ही ने मनाना है। और जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी हमारी, इसलिए मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्लान करिए। अगले 25 वर्ष में जो हमारी इकोनॉमी होगी उसकी ग्रोथ होगी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन, जस्ट एज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज आईटी ड्रिवन। अगली बिल होगी रीजनरेटिव। देयर इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीजनरेटिव प्रोसेसेस, और वो आपके हिस्से में आया है। आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, वो परमात्मा ने इत्तेफाक से आपको पैदा कर दिया इसमें। अगर हम पैदा होते तो शायद हम भी करते। नाउ द बट द एज इज इन योर साइड, तो परमात्मा के एक वरदान है, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द डेस्टिनी। और इसलिए उसको इकोनॉमी ड्रिवन, ये जो स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमी होगी, आपने ये सोचना है कि आपने वैल्यू एडिशन कहां से करनी है। जब हम कहते हैं कि जी हम 2047 में नंबर 1 इकोनॉमी आएंगे, तो कैसे आएंगे? उन क्षेत्रों से, उन सेक्टर से जो अभी तक पूरी तरह न तराशे गए, न तलाशे गए, विच हैव रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। वो कौन से हैं? बंबई नगरी में खड़े होकर के समुद्र तट के पास मैरीन रिसोर्सेज, कभी आपने सोचा? 1100 किलोमीटर समुद्री तट है हिंदुस्तान का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरियाज। आज तक मोदी सरकार आने से पहले किसी ने इस तरफ नहीं देखा। ह्यूज सोर्स ऑफ वेल्थ, फिशरीज, मेटल्स, मिनरल्स। मैं तो कुछ सिविल सर्वेंट से कह रहा था कि आने वाले वक्त में आपको यू विल हैव टू चेक माइनिंग इनसाइड द सी। और ये हमारी डीप सी मिशन भी एक इसी के साथ वाले मंत्रालय ने शुरू की है। आने वाले समय में बहुत बड़ा एक मैरीन स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प आपके सामने आएगा, और वो रातों रात हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जाएगा। दूसरा रहा एग्रीकल्चर का, जिसे मैं कह रहा था लेवेंडर।
एक ये भी मिथ घुस गया हमारे अंदर कि स्टार्टअप होने के लिए आपको आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब वो हुआ किस्सा ये कि वो यूरोप से आया, बेंगलोर लैंड हो गया, बेंगलोर वाज एन आईटी सिटी, आपने सोचा आईटी। बट फॉर इंडिया आवर डोमेन इज एग्रीकल्चर। वी हैव a huge workforce, more than 40% of agriculture workforce in India, but our contribution through agriculture to GDP is just about 13 to 14%. ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। और इसलिए कि एग्रीकल्चर के जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे हम नहीं अपना पाए। अब आजकल का एग्रीकल्चर वो पिछले जमाने का किसान नहीं है 2 बीघा जमीन वाला। दिस इज एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक्नोक्रेट। वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए, कंप्यूटर पर बैठ के सारा काम करता है, उसको उठने की भी जरूरत नहीं। रोबो जाकर के खेत में हल चला देता है। बट यू हैव टू हैव द एप्टीट्यूड एंड दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव। जैसे मैंने आपको कहा कि लेवेंडर का काम कामयाब रहा। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे केवल 50 स्टार्टअप्स हुआ करते थे सन 2014 में, आज बढ़कर के हमारे 10,000 हो गए। और बायो इकोनॉमी हमारी केवल $10 बिलियन होती थी, आज बढ़कर के हमारी लगभग $150 बिलियन हो गए। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल बी 300। इसी तरह स्पेस स्टार्टअप, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम ये सरकार ने ये किया, इसने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। और हमारा ये शुरू से मानना था कि अगर हमने ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो वी हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटेजीज, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर। अब हमारी वही स्ट्रेटेजीज हैं, वही हमारा तरीकेकार है जैसे बाकी दुनिया में। कभी आपने सोचा था स्पेस को खोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में? और उसका नतीजा देखिए, आज हम वीवर जस्ट डिसमिल स्पेस इकोनॉमी, आज हम $8 बिलियन है और हमारी ये प्रोजेक्शन कहती है कि अगले 7-8 साल में वील गो 5 टाइम्स हाई टू $45 बिलियन। एंड वी हैव वर्ल्ड पोटेंशियल स्टार्टअप। और हमारा जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप से स्पेस के जो प्राइवेट के लिए हमने सिर्फ 4 साल पहले खोला, जो 4 साल पहले वाले हमारे स्टार्टअप से वो आज बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। किसी ने हैदराबाद में रॉकेट की फैक्ट्री खोल ली, किसी ने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। यानी ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है, रॉ भी है, अनएक्सप्लोर्ड भी है, केवल जानकारी की कमी है। और इसलिए मेरा आखिर में, क्योंकि बहुत समय नहीं लेना, ये एक औपचारिक उद्घाटन समारोह है, कभी फिर से विस्तार में बैठ करके आपको भी बोर करेंगे और आपसे भी कुछ सीखेंगे। लेकिन आखिर में मुझे ये कहना है कि इस समय यू आर द यूथ लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन इंडिया हैपनिंग। मुझे उस दिन किसी ने पॉडकास्ट में पूछा, एनी रिग्रेट एंड एनी विश। मैंने कहा रिग्रेट तो कर नहीं सकते, परमात्मा नाराज हो जाएगा। विश यही है कि इनकी तरह हम अब पैदा हुए होते जब होना था। हमारा तो सारा जीवन संघर्ष में निकल गया। लेकिन it will be a great tragedy if you are not able to realize this. And as I said, you have not nothing. God has given you this opportunity. इत्तेफाक से आप पैदा हो गए। You have not planned. तो लेकिन make the best use of it. और आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं और अधिक जागरूक होकर जाएं और अधिक संकल्पित होकर जाएं, ताकि इससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आप अपनी सिद्धि की यात्रा पर निकल पड़े और विकसित भारत के निर्माता आप अपने आप को सही मायने में समझने का आत्मविश्वास, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आह्वान करते रहते हैं, और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर है। आप पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, तो जिस तरह से उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको, जैसे उन्होंने टायर 2 सिटीज में स्टार्टअप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं उसकी बात की, और तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रेरणा जिस तरह से आपसे लगातार मिलती रहती है। और मुझे पता है कि आज CSIR परिवार भी बहुत ही लाभान्वित हुआ होगा, गौरवान्वित हुआ होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर एक बार फिर। और आप बात उस ऊर्जावान एक व्यक्तित्व की जो आपके बीच है, हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले कि मैं उनसे आग्रह करूं यहाँ 2 शब्द आपसे कहने के लिए, बस एक बात बहुत बड़ी कि सर समंदर कहा है तो बहुत बड़ा एक विस्तार है, एक बहुत बड़ा विस्तार है इनके व्यक्तित्व में, जिसमें बहुत सारे आपको आयाम ऐसे दिखाई देंगे जिसमें हर आयाम से प्रेरणा मिलेगी। बहुत ही कम उम्र में राजनीति के सफर से शुरुआत करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा जब भी, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, बातचीत करते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसमें ही बहुत सारे ऊर्जा के भाव हमको नजर आते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज के स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भी जाहिर है आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ सर,
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि 2 शब्द हमसे साझा करें। CSIR और हमारी तीनों राष्ट्रीय संस्थाओं के तत्वावधान में आयोजित इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, नीरी के डायरेक्टर डॉक्टर एस वेंकटा मोहन, एनसीएल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष लेले, NIO के डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिन स्टार्टअप्स ने अपने स्टॉल्स यहां पर लगाए हैं, उनको शुरू करने वाले हमारे सारे इनोवेटर्स और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का और हमारी तीनों आइकॉनिक संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में आयोजित किया और इसकी थीम भी इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से इसको आपने संकल्पित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ये थीम ही अपने आप में उद्देश्य को बयान करने वाली थीम है। अभी अभी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हमें बताया और ये बात बिल्कुल सही है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप इकोसिस्टम चाइना के बाद भारत की है और जिस प्रकार से हमारे यंग एंड इनोवेटिव माइंड्स इनोवेशन कर रहे हैं और उसमें से जिस प्रकार से स्टार्टअप जन्म ले रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम ये हमारे भारत की होगी और एक बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लाएंगे। आज टेक्नोलॉजी ने और इनोवेशन ने ये संभावना तैयार की है कि हर चीज में हम लोग एक बिजनेस केस तैयार कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमें ऐसे अवसर देती है कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है, उस हर चीज को हम यथार्थ में ला सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसी क्षमता को इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई हमें अवसर मिलता है और यह ध्यान में आता है कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, तो केवल 3 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 3 चीजें हम उस इनोवेशन में देखें, एक, इज इट ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, ये क्या एफिशिएंसी लाता है? इज इट ब्रिंगिंग ईज ऑफ लिविंग, क्या ईज ऑफ लिविंग लाता है? और इसके साथ साथ ये दोनों चीजों के साथ साथ हमको ये देखना चाहिए कि इज इट सस्टेनेबल। ईज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबिलिटी
और एफिशिएंसी, इन 3 चीजों पर जो इनोवेशन खरा उतरेगा उसको स्टार्टअप में परिवर्तित कर दीजिए और उसको अगर सही ढंग से कमर्शियली मार्केटेबल और स्केलेबल हम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, हम उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। और आज भारत में इतने बड़े पैमाने पर जो यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, जो सुनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, ये सारे दर्शाते हैं कि एक हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके और कहां तक जा सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम जब छोटे थे तो इस देश में किसी को अमीर बताना हो तो लोग कहते थे टाटा बिरला जैसा हो गया। अब लोग कहते हैं टाटा बिरला अडानी अंबानी जैसा हो गया। लेकिन ये सारे के सारे जितने बिजनेस हाउसेस है, इनको तैयार होने के लिए पीढ़ियां लगी, डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 100 साल इन कंपनियों को यहां तक पहुंचने को लगे। लेकिन आज भारत के यूनिकॉर्न्स को हम जब देखते हैं तो एक स्टार्टअप के रूप में आज एक इनोवेशन तैयार होता है, शुरू होता है, मार्केट में आता है और 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में वो यूनिकॉर्न बन जाता है। उसको डिकेड की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कई उदाहरण आज इस स्टार्टअप की इकोसिस्टम में हम लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है इसी दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको जितने ज्यादा उसको बढ़ावा दे पाए। और आज का तो महत्व क्या है, ये तीनों जो संस्था है ये साइंस ड्रिवन स्टार्टअप की बात कर रही है। करीब 70 इंक्यूबेट किए हुए स्टार्टअप्स यहां पर है और ये तीनों संस्थाएं साइंटिफिक फील्ड में है। आज जिसका अभी उल्लेख यहां पर हुआ, महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसमें 701 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो एक समुद्री राज्य है, सागरी राज्य है, जहां मरीन इकोनॉमी की और मरीन सस्टेनेबिलिटी की असीम संभावनाएं हैं और उन असीम संभावनाओं के साथ हजारों स्टार्टअप की संभावनाएं हैं, हजारों बिजनेस केसेस उसमें से तैयार होती है। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हमारी कोस्ट लाइन साफ कैसी रहे, हमारी जो मरीन इकोनॉमी है उसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी कैसी लाए, ये हर चीज एक इनोवेशन मांगती है। ये हर चीज एक स्टार्टअप के लिए बिजनेस केस तैयार करती है। आज मरीन रोबोटिक्स की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस मरीन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी लाने की बात हो रही है, अभी कुछ समय पहले हमें बताया गया कि किस प्रकार से हमारे कैटमरान, इनको क्लीन फ्यूल पर हम चलाना शुरू कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। नीरी जैसी हमारी संस्था, आज हम लोग देखिए सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में इतना ज्यादा इनोवेशन यहां पर करना चाह रहे हैं। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी वाटर बॉडीज, चाहे वो हमारा समुद्र हो, चाहे हमारे नदी हो, चाहे नाले हो, इनमें बहुत पोल्यूशन है, लेकिन इसका केवल 10% पोल्यूशन ये इंडस्ट्री ने किया है। इसका 90% पोल्यूशन हम लोग जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट तैयार करते हैं इसके कारण हुआ है। और अगर हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के तहत उनको ट्रीट कर पाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो
सकते हैं कि एक जमाने में बहुत साफ हमारे नदी और नाले ये हुआ करते थे, उसी प्रकार की परिस्थिति हम ला सकते हैं। इसलिए इस सारे क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इनोवेशन की और स्टार्टअप्स की आवश्यकता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आ रहे हैं और एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी ये आज का बज़वर्ड है और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम लोगों को जितना हम इनोवेट कर पाए, मुझे ऐसा लगता है उतना कम है। और आज सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स आते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। आज एनआईओ जैसी हमारी संस्था है जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है और दशकों से ये कार्य करते आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार तो हमने 3 संस्थाओं को लेकर ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया, लेकिन अगले समय महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं को साथ में लेकर हम लोग इस प्रकार का कॉन्क्लेव निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आज हमारी इनोवेशन सोसाइटी ये बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करती है। हम लोगों ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड खड़ा किया है 120 करोड़ रुपए का, जिससे ये स्टार्टअप्स को हम लोग जो हमारे स्टार्टअप्स मार्केटेबल है, जो स्केलेबल है, उनको वित्तीय व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराए और उनको हम लोग स्केलेबल करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के प्रयासों के कारण अब देश का स्टार्टअप कैपिटल ये महाराष्ट्र बन गया है। और स्टार्टअप इंडिया की जो 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एज वेल एज in terms of absolute investment, in both the terms, the leading state is Maharashtra। अब महाराष्ट्र देश का स्टार्टअप कैपिटल है और हमारा ये प्रयास है कि स्टार्टअप की इकोसिस्टम को इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाते रहे। और मेरा विश्वास है कि हमारी ये जो सारी आइकॉनिक संस्थाएं जो इस प्रकार से स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रही है, इनके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इस इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग नई मुंबई में एक इनोवेशन सिटी तैयार कर रहे हैं, अ सिटी विच विल होस्ट ऑल टाइप ऑफ इनोवेशंस। 300 एकड़ में ये देश की सबसे आधुनिक इनोवेशन सिटी ये मुंबई में तैयार होगी और साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में जो इनोवेशन हो रहा है उसको होस्ट करने का काम, उसको इंक्यूबेट करने का काम इस सिटी में हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक एजू सिटी भी तैयार कर रहे हैं, जिस एजू सिटी में दुनिया की टॉप रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस तैयार करेगी और कम से कम 1 लाख बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। और उसमें से 5 के साथ तो हमारा एमओयू हुआ और उनको परमिशन अब केंद्र सरकार दे रही है, वो अंतिम पादान पर है। जल्दी ही उनको केंद्र सरकार की ओर से एलओआई प्राप्त होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक प्रकार से शिक्षा और इनोवेशन, इसकी लीडरशिप
ये महाराष्ट्र करे और यहाँ के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं इनको अवसर मिले कि जिसके माध्यम से वो अपने इनोवेशंस को स्टार्टअप में परिवर्तित कर पाए और उन स्टार्टअप्स को और ऊपर वो ले जा पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रयास में इस प्रकार का कॉन्क्लेव ये बहुत मददगार सिद्ध होगा। मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुंबई को ये मौका दिया। और हम लोग तो चाहेंगे कि हर साल अलग अलग शहरों में हम इसको करें, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमने भी अब यह अनुभव किया है कि अब ज्यादा स्टार्टअप्स ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रहे हैं, तो हम लोग इस इकोसिस्टम को और अन्य शहरों में भी ले जाए, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। तो हम सबकी यहाँ पर है, लेकिन कुछ आवाजों को और आगे आना चाहिए, यही आह्वान यहाँ मंच से हो रहा है। और सर, आपने 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। आपने इनोवेशन की बात की है, आपने बात की है सर्कुलर इकोनॉमी की, हमारे मंत्री महोदय जी ने फ्यूचर इकोनॉमी की बात की थी। तो ये सब एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग रास्ते हैं, पथ है, जिसके ऊपर हम सब एक साथ चलने की अब